Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. So I hope you all are fine and healthy, and everybody is fine at home also. Children, it's a high time for you all to study hard. Study hard means make your proper timetable, make your proper time management and work accordingly. So children, I hope you all are learning very well. Now, the topic which I am going to discuss with you, as I discussed with you in the previous video about the anxiety disorder, so today I am going to discuss with you somatoform disorder. So the topic of today is somatoform disorder. This is the topic. If we see this disorder, children, somatoform, so here is the word is soma. Soma, which means the body. Soma means the body. So with this we can consider that this disorder is something related to the body. It is a disorder which is something related to the body. So it is basically we can say that it is a bodily symptom disorder. Somatoform disorder एक तरह से bodily symptom disorder होता है. Now इसमें होता क्या है? If we come to understand this disorder, this topic, somatoform, so basically in this one, what is happening? The patient complained of the bodily problem, but no bodily problem exists in the person. इसमें पेशेंट्स क्या करते हैं, वे लोग बहुत सारे बॉडली कंप्लेंट्स करते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम हो रही है और ये चीज़ें हो रही हैं, बट इन एक्चुअल उनको कुछ भी नहीं होता है. जब उनका लाइक फॉर एग्जांपल उनके जब टेस्ट कराए जाते हैं तो उनके रिपोर्ट हमेशा ही लाइक नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव नहीं आते हैं. So this is a disorder where the patient complain of bodily problem, like they complain of headache, sometimes they complain of severe pain in their body, sometimes they complain of that their one part of the body is lost, or sometimes they complain that they had a paralysis. बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स वे लोग बोलते हैं, बट अगर उन्हें एग्जामिन किया जाता है, उनका टेस्ट होता है, तो no results are found. So this is a disorder in which the person complain of the physical problem, but in actual no physical problem exists. There are some categorization also of this disorder. This disorder is basically categorized into 4 main categories, which I am going to discuss with you. I will also discuss with you right now which categorization you all have to study and earlier what was. Means first I am explaining you about earlier. Pehle in somatoform disorder is usually categorized into 4 categories. What are the 4 categories? The first one is the somatization. The first one is the somatization disorder. Second one is the pain disorder. Second one is the pain disorder.
Okay. Third one is the conversion disorder. Third one is the conversion disorder. And fourth one is the hypochondriasis. Hypochondriasis. ओके तो ये 4 कैटेगराइजेशन है बच्चों सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में पेशेंट जो है फिजिकल कंप्लेंट करते हैं बट उनमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती है, दे आर क्वाइट वेल। बेसिकली उनको जो प्रॉब्लम होती है वो उनकी साइकोलॉजिकल होती है, फिजिकल नहीं होती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो दिस इज अ कैटेगराइजेशन which you are seeing on the board. Okay, so I think आप लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चों कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या है। इसमें पेशेंट बॉडली कंप्लेन करता है बट कोई बॉडली प्रॉब्लम उनको नहीं होती है। बेसिकली उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, वो साइकोलॉजिकल होती है। ठीक है, वो प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल होती है, उनके माइंड में ये चीज़ें होती हैं, एक्चुअल में उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। ये सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर ये 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज है, सोमेटाइजेशन, पेन, कन्वर्जन एंड हाइपोचॉन्ड्रियासिस। सोमेटाइजेशन में they report of the problem like fever and cold and cough, like some of the illness. The report of some of the illness, उनको लगता है कि उनको कोई illness है। Okay, after the somatization come the pain. इसमें they complain of incapacitating pain. Incapacitating pain means a pain which is unbearable, which is not able to bear, means जिसे हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ऐसे पेन की वो कंप्लेन करते हैं। थर्ड इज द कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन में कन्वर्जन यानी उनको पैरालिसिस की कंप्लेन आती है। कन्वर्जन डिसऑर्डर में दे कंप्लेन ऑफ द पैरालिसिस समथिंग एंड यू कैन से दैट द लॉस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, उनको लगता है कि उनके बॉडी का कोई पार्ट है जो कि लॉस है, लाइक उनको लगेगा उनका एक हाथ नहीं है या एक पैर नहीं है, ठीक है, आईज नहीं है। इट मीन्स देयर इज समथिंग लॉस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन कन्वर्जन डिसऑर्डर। यू एक्चुअली कुछ भी नहीं होता है उन्हें, इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। दे अज्यूम दैट वन, दे फील दैट वन। तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है, इट इज ऑल साइकोलॉजिकल, नथिंग इज biological. Hypochondriasis, they report of the serious illness. Serious illness report करते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल उनको कैंसर हो गया है, ओके, they report of the cancer, they report of the AIDS, means very serious illness which is not curable. ऐसी बीमारी जो कि ठीक नहीं हो सकती है, वो चीजें वो रिपोर्ट करते हैं हाइपोचॉन्ड्रियासिस में। तो बच्चों आप देख सकते हो कि मीन्स ये भी एक तरह का डिसऑर्डर होता है, एक तरह की एक एबनॉर्मलिटी है जो एक एबनॉर्मल बिहेवियर में दिखती है और एबनॉर्मल पर्सन में दिखती है। और आप देख सकते हो वो बॉडली से भी रिलेटेड उनके अंदर ये एक तरह के डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं। इन्हीं कैटेगराइजेशन को, जो ये 4 कैटेगराइजेशन है, आपके बुक में इन 3 वेज में दिए गए हैं, उसे भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। If you see in your book, so first one is given is illness anxiety disorder. Illness anxiety disorder, ये सबसे पहले दिया है। सेकेंड नंबर पे दिया है
somatization and conversion. ठीक है, somatization is not given there, pain disorder is given there. Basically 3 आपके बुक में दिए हैं, endless anxiety, pain disorder, okay, and conversion disorder. ठीक है, ये 3 दिए हैं आपके बुक में, endless anxiety, पेन डिसऑर्डर एंड कन्वर्जन. पेन आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इनकैपेसिटेटिंग पेन रिपोर्ट करते हैं, अनबियरेबल पेन रिपोर्ट करते हैं. कन्वर्जन में लॉस ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, उनको लगता है कोई बॉडी का कोई पार्ट लॉस है, लाइक पैरालिसिस हो गया है, ऐसा उन्हें लगता है. और इलनेस में भी, इलनेस एक तरह से सोमेटाइजेशन से ही रिलेटेड है, जो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर आपने पढ़ा तो वही है, बट इसमें इट इज अकम्पनीड बाय एन एंजाइटी. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, बीमारी तो रिपोर्ट करते ही हैं, पर साथ साथ उसकी बहुत ही ज्यादा उनमें सीवियर एंजाइटी रहती है. इलनेस के साथ साथ उनमें बहुत ज्यादा सीवियर एंजाइटी रहती है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. सो मैं ये समझूं कि आपको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर अच्छे से समझ में आ गया. ठीक है, many of you all asked these questions, somatoform disorder, so that's why this chapter I am doing the revisions. I am basically doing the revision. I already taught to you all these topics, so on the basis of your questions I am doing this one, as it is not shown here properly, so I will write it here. Okay, so I just hope कि सोमैटोफॉर्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. कल मैंने आपको एंजाइटी डिसऑर्डर अच्छे से पढ़ाया था. नाउ सोमैटोफॉर्म के बाद एक क्वेश्चन और आ रहा है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर को लेके, तो उसे भी समझ लेते हैं अच्छे से. Student, please keep it in mind these things properly, that what are the categorization of the disorders, like what are the things come under anxiety disorder, what are the things come under somatoform disorder, okay, and what are the things come under any other disorder. So I am going to discuss with you dissociative disorder also. डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, सी हर एक डिसऑर्डर के वर्ड में ही उसकी कुछ ना कुछ मीनिंग हाइड होती है. एंजाइटीज सिम्टम होते हैं, सोमेटोफॉर्म में सोमा है, इट मीन बॉडली सिम्टम्स है. डिसोसिएटिव में वर्ड है डिसोसिएटिव विच इज नॉट एसोसिएटिव, मीन्स नो एसोसिएशन, ये वर्ड आया, नो एसोसिएशन. नो एसोसिएशन मीन्स इस डिसऑर्डर में बेसिकली देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द रियलिटी एंड द पर्सन, लाइक बेसिकली रियलिटी से उनका टच नहीं होता. द पेशेंट डोंट हैव द टच विद द रियलिटी. जो उनके प्रेजेंट में हो रहा है या जो भी चीजें उनके सामने है उससे उनका टच नहीं होता. वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, आप कह सकते हो. दे हैव मेड देयर वर्ल्ड, वे एक दुनिया बनाए रहते हैं और वो उसी में ही रहते हैं. तो बेसिकली डिसोसिएटिव वर्ड बना है डिसोसिएशन से, मीन्स नो एसोसिएशन, नो कनेक्शन विद द रियलिटी. रियलिटी से इनका कनेक्शन नहीं रहता है.
तो ये तो हमने जाना कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है क्या। इसमें बेसिकली कनेक्शन नहीं रहता है रियलिटी से। बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं पर्सन को, लाइक सम ऑफ द फिजिकल सिम्टम अराइज, सम ऑफ द साइकोलॉजिकल सिम्टम अराइज. As children, we all know that our mind and body is very correlated. So whatever affect the mind, it ultimately affect the body, and whatever affect the body, it ultimately affect the mind. आप बीमार होते हैं, you have the cold and cough problem, तो you feel irritated, you feel like mood upsets, mood swings. So obviously body is related to the mind. Similarly, when you are upset, when you are irritated, so you stop eating nutritious food, you start taking junk food. तो आप क्या कर रहे हो, माइंड की वजह से बॉडी अफेक्ट हो रही है. तो दोनों बहुत ही रिलेटेड हैं. ठीक है. तो कुछ फिजिकल सिम्टम्स डिसऑर्डर्स में आते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं. बेसिकली एंजाइटी इसमें भी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, और इसकी कैटेगराइजेशन भी है. हम लोग इसे कैटेगराइजेशन को पढ़ते हैं. ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है. फर्स्ट वन इज dissociative amnesia. Dissociative amnesia. Second is dissociative fugue. Okay. Third is dissociative personality disorder. Dissociative personality disorder, जिसमें 2 अल्टरनेटिव नेम्स भी हैं इसके. इसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं. ठीक है. डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी होता है, और मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होता है. एक और कैटेगराइजेशन है इसका. ठीक है. वो है डीपर्सनलाइजेशन. ठीक है. तो डीपर्सनलाइजेशन. सो बेसिकली 4 कैटेगराइजेशन है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के. डिसोसिएटिव एमनीशिया, डिसोसिएटिव फ्यूग, डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डीपर्सनलाइजेशन. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन. क्या है ये? सो सबसे पहले पढ़ते हैं डिसोसिएटिव एमनीशिया. एमनीशिया आई थिंक आप सभी को मालूम होगा. एमनीशिया आपने पढ़ा होगा. एमनीशिया का मतलब होता है, मेमोरी में आपने पढ़ा होगा व्हेन यू आर रीडिंग इन द क्लास 11 एंड देयर इज अ चैप्टर बेस्ड ऑन मेमोरी. सो देयर यू रेड अबाउट द वर्ड एमनीशिया. एमनीशिया मतलब होता है कि मेमोरी लॉस. बेसिकली एमनीशिया क्या होती है? मेमोरी लॉस होती है. नाउ डिसोसिएटिव एमनीशिया क्या है? इसमें क्या होता है? पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी होती है. दोनों बोथ द कंडीशंस आर देयर. डिसोसिएटिव एमनीशिया एसोसिएशन भी नहीं है और एमनीशिया भी है. पार्शियल भी होता है या कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी भी होता है डिसोसिएटिव एमनीशिया में.
पार्शियल कहने का मतलब है कि कुछ पार्ट द पर्सन विल रिमेम्बर, सम पार्ट ऑफ हिज लाइफ द पर्सन विल रिमेम्बर एंड सम पार्ट ही विल फॉरगॉटन। सो ये चीजें होती हैं, सम पार्ट इज रिमेम्बर एंड सम पार्ट इज फॉरगॉटन। Like there is one condition also that person remember his present but don't remember the past, and in some condition the patient remember the past but don't remember the present। ठीक है, उनको पास्ट उनका याद होता है बट प्रेजेंट नहीं याद होता कि वो अभी क्या है, बट प्रेजेंट कुछ लोगों को याद होता है और पास्ट नहीं याद होता। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी, तो ये एमनीशिया है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी। सेकेंड कंडीशन जो अभी मैं बताने जा रही हूँ वो है डिसोसिएटिव फ्यूड। फ्यूड जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है, द मीनिंग ऑफ द फ्यूड इज द वेकिंग अप स्टेज। पर्सन एक तरह से, जैसे कि आप समझ सकते हो कि द पर्सन इज समथिंग जस्ट लाइक इन अ ड्रीम। एक तरह से जैसे लगता है कि वो ड्रीम देख रहा है, जैसे हम लोग एक ड्रीम देखते हैं और फिर ड्रीम आप जब देखते हो वो क्या होता है। See, psychology is something you understand when you correlate the theory from your practical life। जब आप इस थ्योरीज को अपने प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे अपने आसपास के लोगों को, then you will be able to understand the concepts more better। आप concepts को और अच्छे से समझ सकते हो। चलिए, तो आते हैं, ड्रीम की बात हम कर रहे थे। आप सभी ने ये आई थिंक सभी का ये एक्सपीरियंस होगा ज़रूर। कभी कभी क्या होता है कि ड्रीम्स जो आते हैं हम उस ड्रीम का पार्ट हो जाते हैं, नोइंगली भी और अननोइंगली भी, बेसिकली अनकॉन्शियसली ही होते हैं, क्योंकि ड्रीम्स में हम लोग अनकॉन्शियस में होते हैं। तो क्या होता है कि आपने भी फील किया होगा बच्चों कि जब भी आप ड्रीम्स देते हो आपको लगता है वो रियलिटी में हैपन हो रहा है, आप उसका पार्ट हो जाते हो, यू फील इट, एंड एट दैट टाइम योर बॉडी ऑल्सो रिएक्ट लाइक दैट। मे बी इट नॉट रिएक्टिंग लाइक एक्सटर्नली, बाहर से कुछ भी ना रिएक्ट कर रही हो, बट इंटरनली इफेक्ट होता है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इन दिस वन, एक्सटर्नली भी होता है। लाइक आपने बहुत से लोगों को सुना होगा, यू हैव हर्ड दैट दे लाफ इन द ड्रीम। कभी कभी हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं, ठीक है, वाइल स्लीपिंग। ठीक है, ये ज्यादातर बच्चों के साथ होता है, बट ये एडल्ट के साथ भी हो सकता है, एडोलसेंट्स के साथ भी हो सकता है। इट्स नॉट फिट्स अ प्रॉपर स्टेज। सो आप देख सकते हो क्या हो रहा है। आपने देखा होगा ना, तो क्यों ऐसा होता है कि बच्चे या कोई भी पर्सन है ड्रीम देख रहे हैं तो वो रोने लग रहे हैं या हंस रहे हैं, क्योंकि दे गोज इनटू दैट वन। ठीक है, तो फिर वो आपकी लाइफ का एक तरह से क्या हो जाता है, पार्ट हो जाता है। वो आपको लगता है कि वो इंसिडेंस रियलिटी में हो रहा है। सिमिलरली इन द फ्यूड ऑल्सो, अ पर्सन एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं और फिर वो सडन वेकअप होते हैं। इसमें भी मेमोरी लॉस होती है। जैसे क्या होता है कि अचानक से बेसिकली पेशेंट अपने प्रेजेंट में है और अचानक से कभी पेशेंट उठते हैं और दे गोज टू समवन अदर प्लेसेस एंड स्टार्ट लिविंग देयर लाइवलीहुड एंड फॉरगॉट अबाउट देयर पास्ट। तो ये फ्यूड स्टेट है। आपको जान के बड़ा मीन्स आई नो डैट कि आफ्टर नोइंग दिस वन यू आर गेटिंग वेरी मच सरप्राइज्ड एंड वेरी मच क्यूरियस एंड सो मेनी क्वेश्चंस आर ऑल्सो कमिंग इनटू योर माइंड। आप लोग बहुत सरप्राइज हो रहे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके माइंड में आ रहे होंगे। आई नो वेरी वेल, बट यस चिल्ड्रन, इट इज वेरी ट्रू कि ये चीजें होती हैं। ये एक तरह के डिसऑर्डर है। ठीक है, व्हाट इज दैट? इट इज अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, आप समझ लो, एक तरह का डिसऑर्डर है उस पर्सन को। दैट पर्सन इज फेसिंग सम प्रॉब्लम। वो पर्सन कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है।
ठीक है। और वो प्रॉब्लम जो भी चीजें वो कर रहे हैं वो कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट अनकॉन्शियसली। वो उनको भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग दैट वन, क्योंकि दे आर सफरिंग फ्रॉम सम एबनॉर्मलिटी, दे आर नॉट नॉर्मल, दे आर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज दे आर एबनॉर्मल। सो फ्यूड में क्या होता है, वे सडनली वेकअप स्टेज आ जाता है। अच्छा, जो भी लाइफ वहां पे वो जीने लगते हैं, फिर वहां से भी उनको फ्यूड स्टेज आता है, फिर दे अगेन कम बैक टू देयर इन द रियल वर्ल्ड एंड स्टार्ट लिविंग देयर लाइवलीहुड। मीन्स वो कहीं से भी उठ के कहीं भी चले जाते हैं और उनकी पास्ट की सारी मेमोरी लॉस हो जाती है, और फिर जहां वो रहते हैं वो वहां की लाइफ को स्पेंड करने लगते हैं, ठीक है। और फिर सडनली उनको फिर फ्यूड होता है। आप कह सकते हैं अ काइंड ऑफ लाइक अटैक, सडन अटैक आ रहा है उनके माइंड में, उनका माइंड जो है एक तरह से ट्रिगर कर रहा है और it is happening to them. So children, we discuss about the amnesia and we discuss about the feud. Now the two things are left, dissociative personality disorder and depersonalization. Depersonalization में बच्चों ड्रीम लाइक स्टेट होता है, ठीक है। डीपर्सनलाइजेशन में ड्रीम लाइक स्टेट होता है। डीपर्सनलाइज मीन्स बेसिकली क्या होता है, वो एक ड्रीम में होते हैं और दे कंसिडर दैट ड्रीम अ रियलिटी। मैंने बोला ना, आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू दैट डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का मतलब होता है कि दे अवे फ्रॉम द रियलिटी, नो एसोसिएशन एंड नो कनेक्शन विद द रियलिटी, रियलिटी से कनेक्शन नहीं होता। तो डीपर्सनलाइजेशन में ऐसे ही होता है, एक ड्रीम देखते हैं, उस ड्रीम को ही रियलिटी मानने लगते हैं एंड दे फॉरवर्ड देयर रियल लाइफ एंड दे स्टार्ट ड्रीमिंग एंड दे थिंक वॉट एवर दे आर ड्रीमिंग इट इज देयर रियलिटी। उनको लगता है कि जो ड्रीम देख रहे हैं वही उनकी रियलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ड्रीम में देख रहे हैं कि दैट पर्सन वॉज अ किंग ऑफ एनी स्टेट या एनी कंट्री, अगर वहां तक कहीं वो राजा है, तो वो उसी तरह से फील भी करने लगते हैं अपने आप को। तो ये क्या है, डीपर्सनलाइजेशन। सो आई होप चिल्ड्रन यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। स्टिल इफ यू फील एनी डाउट यू आस्क इन द क्लासरूम। नाउ द लास्ट वन which is left is the dissociative personality disorder। अगर हम ये डिसऑर्डर की बात करें तो ये सबसे कॉमन डिसऑर्डर है डिसोसिएटिव में। कॉमन कहने का मतलब है कि मेनी केसेस आर देयर ऑफ द डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बहुत केसेस हैं। एंड many movies and many books are also written and published, and many movies, fiction and non-fiction movies are made on this topic. Even in our Bollywood also, and when you go into the South movie also, some of the movies were made on this one. And as a children you were also asking such kind of thing कि ma'am really it is happening, क्या ये ऐसा सच में होता है? So children, yes it is true, ये होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे लिए ये चीजें बहुत ही एक्साइटिंग हो रही हैं, बहुत ही क्यूरियस होते हैं आप लोग, एंड इट्स वेरी गुड, बहुत ही सरप्राइजिंग भी होते हैं। somebody surprised also, somebody excited also to know new things, somebody are feeling very interesting also. But those who are having this disorder, their life is completely devastated, as well as their family is completely affected by that. So realize the importance of the problem, children, कि ये problem क्या है, and the more important
you all should understand this one and you all have to write down in the examination. So your concept should be clear. इसमें क्या होता है बेसिकली इन दिस, द पर्सन इज हैविंग मोर देन वन पर्सनैलिटी. एक तो उसकी खुद की पर्सनैलिटी होती है और उसके अलावा उसमें एक या एक से ज्यादा पर्सनैलिटी आ जाती है. आइडेंटिटी में 2 आती हैं और मल्टीपल में मोर देन 2 और 3. और दोनों ही पर्सनैलिटी एक दूसरे के बारे में अवेयर नहीं रहती. ये जान के नहीं आते, अनकॉन्शियसली आते हैं. और आप कह सकते हैं द रीजन ऑफ सी एनी डिसऑर्डर, अगर हम लोग इट्स नॉट ओनली पर्सनैलिटी. इफ आई टॉक अबाउट एमनीशिया, इफ आई टॉक अबाउट फ्यूज, इफ आई टॉक अबाउट DID, any disorder came when you repressed your desire and feeling into the unconscious. Main root cause of everything is repression, suppression, what you जो आप कह लो, ठीक है. तो जब आप हर एक चीज को रिप्रेस कर देते हो तो तभी कितना आप दबाओगे किसी चीज को, नीचे नीचे नीचे, तभी तो वो आएगा ना ऊपर. इट्स जस्ट लाइक दैट. तो उसी तरह ये सारे डिसऑर्डर्स हैं. हम सारी चीजों को इतना रिप्रेस कर देते हैं कि वो सडनली बहुत ही अनयूजुअल वे में हमारे कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं और जिसको हम खुद नहीं समझ पाते कि हमें क्या हो रहा है. ठीक है. ये या तो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट या एनी अदर पर्सन हु बिलोंग टू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, दे कैन अंडरस्टैंड कि okay, this person is facing such kind of problem. So I hope children the topics are understand to you all very well. Keep watching the videos and thank you for carefully listening.